back to the channel everyone. 9th standard students, this is your lecture for chapter number 2 of political science. In the last lecture we covered the 5th chapter of your textbook of history. Today we are going to cover with 2nd chapter of your political science. In the next lecture we are going to cover with geography, 3rd chapter, and then we are going to cover 4th chapter of geography. I guess I am going to complete half of the book of geography as well, and then we are going to cover 3rd chapter of political science as well. Okay, so वो बात की बात बाद में देखेंगे. अभी ये चैप्टर को चालू करते हैं. This lecture is going to be a bit huge, somewhere around 45 minutes. Okay, 45 to 1 hour हो सकता है. ठीक है, so start करते हैं. चैप्टर नंबर 2, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. एसी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बहुत ठंडा हो गया है. 25-26 डिग्री कर देते हैं, जस्ट बिकॉज बाहर बारिश हो रही है तो अच्छा खासा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है. What are we going to learn in this chapter? We have got introduced to international system and its nature, the Cold War in the last century. We have studied about the Cold War, we have studied about World War I. इंटरनेशनल सिस्टम क्या चल रहा है. अब ये चैप्टर में हम लोग फॉरेन पॉलिसी के बारे में स्टडी करेंगे. सो मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, सो all countries are members of international system. We have already studied that, and none of these countries is completely self-reliant, and hence there is mutual interdependence in the international system. On this interdependence should not be of benefit to a few countries. Only this interdependence should not be a benefit. Okay, efforts need to be made to ensure that it benefits every nation. Each country has to decide the nations with which it should be friendly, in which bloc it should participate, or what position it should take. On what position it should take in international relations. Such decisions should be made thoroughly or thoughtfully. The theoretical framework in which such decisions are taken is called as foreign policy. Every sovereign and independent country decides its own foreign policy. Hence, in the discipline of international politics, which studies the international relations between nations, foreign policy has an important place. Okay, हम लोग ने देखा है, हम लोग ने स्टडी किया है, हमको पता है कि हर कंट्री एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करती है. Why they make such relations? Why they are making such relations? अब मैं बता दूं उसका रीजन. हर कंट्री के पास हर एक टाइप का रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होता है. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी कैन अवेल. अभी देखो, ये है लाइफ बॉय और ये है पानी. ठीक है, कुछ कंट्रीज के पास पानी है, कुछ कंट्री के पास सैनिटाइजर है. अब हम लोग के पास समझो सिर्फ पानी है, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है. और हम लोग समझो श्रीलंका से वी आर डीलिंग. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग श्रीलंका के पास पानी दे रहे हैं क्योंकि उनके पास पानी की कमी है. श्रीलंका के पास बहुत सारा सैनिटाइजर है तो हम लोग उनसे थोड़ा सा सैनिटाइजर ले लिया. अब देखो, दोनों कंट्रीज को एक एक चीज की डेफिशिएंसी थी. श्रीलंका के पास सैनिटाइजर था, हमारे पास पानी था. तो हमारे पास किस चीज की डेफिशिएंसी थी? सैनिटाइजर की डेफिशिएंसी. श्रीलंका के पास पानी नहीं था, सैनिटाइजर था, तो उनके पास किस चीज की डेफिशिएंसी थी? पानी की डेफिशिएंसी. हमने उनकी पानी की डेफिशिएंसी कम कर दी, उन्होंने हमारे सैनिटाइजर की डेफिशिएंसी कम कर दी. इन शॉर्ट, वी हैव अ फ्रेंडली रिलेशन विद श्रीलंका. ऐसे ही दुनिया की हर कंट्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट. हर छोटी कंट्री की हेल्प बड़ी कंट्री को करनी है, हर बड़ी कंट्री को कोशिश करना है कि वो छोटी कंट्री को डेवलप करे. एक दूसरे के साथ हर एक कंट्री बोरो करके चलती है. फॉरेन पॉलिसी उसी का नाम है. समझ में आया? हम दूसरी कंट्री के साथ कैसी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी. Coming to next point we have is national interest. We have briefly understood what foreign policy means. National interest and foreign policy are closely connected to each other. National interest is fostered through national foreign policy. Therefore, before studying foreign policy, further we need to understand the meaning and significance of national interest. समझ में आ रहा है? अब देखो, यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है, नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी दोनों हैंड इन हैंड चलता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. बट
नेशनल इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है नेशनल इंटरेस्ट से। फॉरेन पॉलिसी हम लोग ने स्टडी कर चुके हैं, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है अब वो हम लोग देखते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इंप्लाइज द मीन्स थ्रू विच the interdependence and sovereignty of our country can be safeguarded. National interest also includes efforts to achieve our economic development and to take steps towards increasing our national power. When decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for our country, we say that we are nurturing our national interest. In this sense, the following factors are included in the national interest of any country. जब हम लोग हमारी ही कंट्री के बारे में, खुद के बारे में जब सोचते हैं, बहुत अच्छे से सोचते हैं कि हमारे लिए सेफ्टी वाइज क्या अच्छा है, हमारे लिए डेवलपमेंट वाइज क्या अच्छा है, हमारे लिए सोशली क्या अच्छा है, हमारे लिए इकोनॉमिकली क्या अच्छा है, हमारे लिए फिजिकली क्या अच्छा है, हमारी कंट्री के लिए क्या क्या चीजें अच्छी है, वो सारी चीजें हमारे नेशन का इंटरेस्ट किन किन चीजों में है, उसी चीजों को बोला जाता है नेशनल इंटरेस्ट। समझ में आया? क्लियर है? So there are some 2 points given to you which will explain you national interest further in a very good sense. First is defense, that is the protection of our country's independence, sovereignty and integrity is the highest national interest. सबसे पहले तो पहला नेशनल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? That our country is safeguarded. हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? Our first national interest should be defense. Our defense should be very high, just to make sure that we are very protected. Second is economic development is also an important national interest. An economically weak nation will not able to maintain its independence. Hence, economic development is understood to be an important national interest. Next, only to defense. देखो खाली डिफेंस अच्छा होना खाली बात नहीं है. Economically भी you should have a strong background. Your country should be economically stable. Your country should be military wise stable. Defense स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी वीक है तो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी, और अगर कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी अल्टीमेटली डिफेंस भी कोलैप्स हो सकता है। डिफेंस अच्छा है तो इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमी अच्छी है तो डिफेंस भी अच्छा होना चाहिए। इन शॉर्ट बोथ शुड बी वेरी वेरी हाई एंड स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी, अब दोनों का कनेक्शन क्या है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। National interest and foreign policy. That particular these 2 points are what we are going to study right now. इसके बीच में कनेक्शन क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। Foreign policy is drawn up to foster the national interest of defense and economic development. Foreign policy जो है वो क्यों बनाई जाती है? ताकि कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग हो और डिफेंस स्ट्रांग हो। इकोनॉमी को और डिफेंस को स्ट्रांग बनाना है तो कंट्री को अच्छे से अपनी ऐसी फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है? नेशनल इंटरेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी अ गोल एंड फॉरेन पॉलिसी इज कंसीडर्ड टू बी द मींस टू अचीव इट। नेशनल इंटरेस्ट हमारा गोल है। अगर हमको नेशनल इंटरेस्ट स्ट्रांग रखना है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट को हमको अगर अचीव करना है तो उसको अचीव करने के लिए हमको जो राह मिल रही है, दैट विच बाय व्हाट मेथड्स वी कैन अचीव आवर नेशनल इंटरेस्ट बाय अचीविंग गुड फॉरेन पॉलिसी। अगर हमने अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाई अल्टीमेटली हमारी कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो स्ट्रांग रहेगा, वो फुलफिल होता जाएगा। नेशनल इंटरेस्ट कंप्राइजेस ऑफ 2 मेन पार्ट्स, दैट इज डिफेंस एंड इकोनॉमी। ठीक है? गोल्स ऑफ नेशंस चेंज विद चेंजेस इन द कंडीशंस एंड टाइम। अकॉर्डिंगली नेशनल इंटरेस्ट आल्सो चेंजेस, these changes are reflected in the foreign policy, therefore foreign policy is always dynamic. हर टाइम टू टाइम कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो जाता है और उस चेंजिंग नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी भी चाहिए। इसलिए फॉरेन पॉलिसी हमेशा डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब लिख लो अपने बुक में, मैं बार बार नहीं बोलूंगा हर लेक्चर में कि तुमको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। टेक्स्ट बुक निकालो, वीडियो को अभी पॉज करो, टेक्स्ट बुक निकालो अगर नहीं निकाला तो, और फिर बुक निकालने के बाद पेज नंबर 66 खोलो और डायनेमिक वर्ड जो है फर्स्ट पैराग्राफ के 3rd लाइन में ऊपर जो कंटिन्यू हुआ है पिछले पेज से, उसका मीनिंग लिख लो। लास्ट वर्ड है डायनेमिक, द थिंग विच चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। समझ में आया? क्लियर? लिखा? चलो आगे बढ़ते। नहीं लिखा है तो पॉज कर लो, लिख लो और फिर वीडियो को कंटिन्यू करो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी।
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी, अब वो क्या क्या चीजें हैं जो फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए जरूरी है, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है हमको, तो उसका पहला पॉइंट है ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, you must have seen the globe or map of the world. You can see the geographical location of any nation from that. Some countries are far away from other countries, while there are several neighboring countries around some countries. Some nations have a long coastline, while some have a plenty of mineral wealth. In some, the size of the population, topography, coastline, availability of natural resources, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country. अब तुम लोग ग्लोब ले लो, ग्लोब मतलब सही में मत लो, अगर ग्लोब देखोगे तुम लोग बहुत सारी कंट्रीज है उसमें, 206 कंट्रीज है, वो 206 कंट्रीज में कुछ कंट्री बहुत दूर है एक दूसरे से, कुछ कंट्री बहुत फार है, मतलब फार और दूर है कि मतलब पास है, ठीक है, कुछ कंट्री दूर है, कुछ कंट्री पास है, किसी का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, किसी के पास कोस्ट लाइन ही नहीं है, किसी के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी के पास पॉपुलेशन कम है, किसी के पास कोस्ट लाइन का जो मिनरल वेल्थ है वो ज़्यादा है, किसी के पास मिनरल वेल्थ कम है, पहाड़ वाले इलाके किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास पहाड़ वाले इलाके कम है, तो ये सारी चीजों को कंसिडर करके ही फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। ज्योग्राफिकल लोकेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एस्पेक्ट व्हेनेवर यू मेक अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। सेकंड पार्ट इज पॉलिटिकल सिस्टम। समझ में आया? ज्योग्राफिकल लोकेशन तुमको हर एक पर्टिकुलर कंट्री का अलग अलग फॉरेन पॉलिसी मिलेगी, क्योंकि कंट्री की अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन है अर्थ पे। सेकंड इज पॉलिटिकल सिस्टम। In a democratic political system, the nation's parliament plays a major role in evolving foreign policy. कंट्री की पार्लियामेंट बहुत मेजर रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी को बनाने में। When different aspects come up for discussion in parliament, the opposition parties try to regulate the foreign policy by raising questions about the same. जब दूसरी डिफरेंट क्वेश्चंस उठते हैं फॉरेन पॉलिसी पे, तो अपोजिट पार्टी ऑब्वियसली क्वेश्चन उठाती है कि फॉरेन पॉलिसी में कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह होंगे या कुछ भी चीज़ें ऐसी होंगी जो अपोजिट पार्टी को अट्रैक्ट अच्छी नहीं लग रही होगी, तो लोग उस पर सवाल जरूर उठाते थे। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम हैव टू टेक इनटू अकाउंट द इंक्लिनेशंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स व्हाइल शेपिंग फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज द अफेयर्स इन नेबरिंग नेशंस अफेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, events in Sri Lanka may affect Tamil Nadu and those in Bangladesh may affect the West Bengal and the Northeast Indian states. अब कुछ नेबरिंग कंट्रीज ऐसी है जिनके एक्टिविटीज के वजह से कंट्री एक दूसरी कंट्रीज को इफेक्ट पड़ता होगा। जैसे कि अगर समझो कुछ श्रीलंका में हो रहा है, ठीक है, श्रीलंका में कुछ अगर राइट्स वगैरह कुछ हो रहे हैं, तो शायद उसका असर शायद तमिलनाडु पर भी पड़ जाए, बिकॉज इट इज एडजॉइनिंग टू दी तमिलनाडु, ठीक है, या वेस्ट बंगाल में कुछ हो रहा है तो बांग्लादेश के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ सकता है, जस्ट बिकॉज इट इज एडजेसेंट टू ईस्ट इंडियन स्टेट्स। समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं, पॉलिटिकल ऐसी इंस्टेबिलिटीज अगर दूसरे कंट्रीज में होती है तो उसका असर हमारी कंट्री पे भी पड़ सकता है। ओके, थर्ड इज इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी। इन मॉडर्न टाइम्स the economic condition of any country has acquired great importance in deciding foreign policy. As a result, the economic impacts foreign policy in two ways. अब देखो, कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। क्या दो टाइप के इम्पैक्ट्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के फॉरेन पॉलिसी पे, वो देखेंगे। पहला है फॉरेन पॉलिसी शेप्ड बाय द नीड टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड में हमारा क्या पार्टिसिपेशन है और हमारी कंट्री वर्ल्ड में कितनी ज्यादा मजबूत है। पहला कंडीशन ये है फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त इकोनॉमी का ये एस्पेक्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रांग है, हम किन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास कितने ज्यादा कोस्ट लाइन्स है, हम कितने ज्यादा स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हमारे पास क्या क्या चीजें ऐसी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी नहीं है जो हमको इंपोर्ट करनी है। Second point is, in today's world, the issue of economic security are as important as national security. तो economic security भी एक important issue मानी जाती है national security से। एक कंट्री को उसके
डिफेंस की वजह से भी जाना जाता है और उसकी इकोनॉमी की वजह से भी, कि कंट्री कितनी ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल है। जो कंट्री जितनी ज़्यादा इकोनॉमी स्टेबल रहती है, इकोनॉमिकली स्टेबल रहती है, उतना ज़्यादा उसका नाम रहता है, गुडविल रहता है। सो योर कंट्री शुड हैव प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जीडीपी ऑफ द कंट्री शुड बी वेरी वेरी हाई, जीडीपी ऑफ द कंट्री शुड बी स्टेबल, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? फॉरेन पॉलिसी उसी चीज़ को देख के बनाई जाती है जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो, जिससे कंट्री की इकोनॉमी और स्ट्रांग हो, जिससे कंट्री का इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े। समझ में आया? फोर्थ इज नेशनल लीडरशिप। The president, the prime minister, the foreign minister, the defense minister, the finance minister and the home minister, ये सारे लोग मिलकर foreign policy बनाते हैं। The person holding these positions try to maintain the continuity in foreign policy and to improve upon it। जो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि हर बार फॉरेन पॉलिसी को लोग इंप्रूव करते रहे। फॉर एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी contributed the policy of non-alignment to India's foreign policy। non-alignment movement मतलब क्या? बाइपोलराइजेशन जब हुआ था ना सेकेंड वर्ल्ड कोल्ड वॉर में, कुछ कंट्रीज सोवियत यूनियन के साथ थी, कुछ कंट्रीज अमेरिका के साथ थी, पर इंडिया किसी के साथ भी खड़ा नहीं था। दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तब इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चूज किया था, उन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया था, उनको कोल्ड वॉर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, दे जस्ट वांटेड टू डेवलप देमसेल्फ। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, लास्ट चैप्टर के, ठीक है? तो वो जाके एक बार उसमें स्टडी कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो भी मैंने बताया, तो उसको उस लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था, उसके ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द पर्सन हु मेड फॉरेन पॉलिसी, हु इज द मास्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू इंप्रूविंग सीनो इंडियन रिलेशन। सीनो इंडियन रिलेशंस मतलब क्या? जो इंडियंस ईस्ट इंडिया में रहते हैं, जो you can say that which are living in Arunachal Pradesh side areas। Fifth point, administrative factors। Ministry of External Affairs, Foreign Secretary, embassies in different countries, diplomatic officers, etc. are the administrative factors involved in creating foreign policy. Even though the final decision about foreign policy are taken by the Prime Minister and the Ministers of External Affairs, the administrative machinery has to arrive at that decision. The administrative officers collect information needed to shape the foreign policy, analyze it and give appropriate advice based on it. The National Security Advisor also completes this task. Administrative office means officers, ठीक है? जैसे कि तुम्हारे ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस है। जैसे कि एम्बेसीज, हर कंट्री में इंडिया की एम्बेसी है, हर कंट्री के हर एक पर्टिकुलर बड़े से बड़े लीडिंग प्लेस में, सिटी में इंडिया की एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर इंडिया के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। हर कंट्री की बिल्डिंग होती है, हर एक कंट्री में इंडिया की बिल्डिंग हर एक कंट्री में हो, ठीक है? तो वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडियन लोग वहाँ पर काम करते हैं, या वहाँ के लोग काम करते होंगे इंडियन एम्बेसी के नाम पे, ठीक है? समझ में आ रहा है? सो दे कंप्लीट दिस टास्क ऑफ जब भी हम लोग ये एम्बेसी वगैरह की बात करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस की बात करते हैं, दैट पर्टिकुलर टाइम वी डील विद फॉरेन पॉलिसी। हमारा रिलेशन हर कंट्री के साथ अगर फ्रेंडली है, दैट मीन्स वी हैव good administrative work with them, we have good import export activities with them, we have good friendly relations with them। तो ये जो friendly relation है, ये जो particular type of national security, ये जो type of environment बना है to maintain peace and security all around the world, इंडिया का जो relation है in terms of foreign policy जितनी भी countries के साथ अच्छा relation अगर foreign policy की वजह से है, that is due to the good import export activities, good friendly relations। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अभी हम लोग ने इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को स्टार्ट नहीं किया, हम लोग अभी इन जनरल सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में।
सो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। तो आधा चैप्टर हो चुका है, एज यू नो जब भी आधा चैप्टर होता है, और ये पेन बदल गई है, पता नहीं कैसे अचानक फिर से आधा चैप्टर होता है, तो मैं लाइन खींच देता हूँ। ओके, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसी नहीं बोलेंगे, पॉलिसी बोलेंगे, ठीक है, पॉलिसी। After taking this preliminary information about foreign policy, we shall now get to know about India's foreign policy. अभी हम लोग ने फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक जनरल स्टडी किया है कि हर कंट्री एक दूसरे के साथ जब रिलेशन मेंटेन करती है तो कैसी पॉलिसी मेंटेन करती है, उस पॉलिसी को बोला जाता है फॉरेन पॉलिसी। तो अभी हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करेंगे। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 and from then onward we started shaping our foreign policy independently. 1947 में इंडिपेंडेंस मिला तो हम लोग अभी अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाना चालू कर रहे हैं। The directive principles of state policy have laid down guidelines about how to shape foreign policy. Article 51 among the directive principles of state policy lay down the broad framework for foreign policy. According to it, India should give priority to safeguard international peace and security and resolve our international problems and disputes by peaceful means. The objective of our foreign policy should be to maintain friendly relations with other nations and respect international law. India's foreign policy till now has been developed in this framework. बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को बनाए गए। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी को खुद बनाना चालू किया और उसमें हम लोग ने कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी दी, जैसे कि हम लोग हमारे कंट्री को सेफगार्ड करेंगे, पहले तो सेफ रखेंगे, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इकोनॉमिकली कंट्री को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट को हम लोग ने पहली प्रायोरिटी दी, ठीक है। और इंटरनेशनल जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं हम लोग पहले उसको सॉल्व करेंगे, हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, और हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर टर्निंग दोज डिस्प्यूट्स इनटू अ फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है। जब हम लोग इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को ऐसे सॉल्व करना है कि वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट जिसके साथ भी हमारा था वो कंट्री अल्टीमेटली हमारी फ्रेंड बन जाए और हम उनके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी चालू कर दे, या हमारा उनके साथ अच्छा खासा ट्रेड रिलेशन बन जाए। इंडिया इसी मकसद के साथ फॉरेन पॉलिसी को बना के अभी तक काम कर रही है। Some more objectives of India's foreign policy are as follows. Some objectives of India's foreign policy, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, कुछ 4 पॉइंट दिया है। While maintaining friendly relations with neighboring countries, ensure that the defense and the security of India is not affected. हम लोग अगर दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको हमारे डिफेंस का फायदा उठाने देंगे, उनको हमारे कंट्री में घुसने देंगे, उनको हमारा फायदा उठाने देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमको हमारा डिफेंस और हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखना है। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज अबाउट द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, समझ में आया। सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। थर्ड क्या है, सिटीजन्स का भी हमको ध्यान में रखना है कि जो भी सिटीजन्स हमारे कंट्री में रहे हैं हमको पहले उनके बारे में सोचना है। एक्सपोर्ट करने के बारे में पहले नहीं सोचना है, हमको पहले हमारे कंट्री के लोगों के बारे में सोचना है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फुलफिल्ड बाय इंडियन एम्बेसीज देयर, ठीक है। हमको हमारे कंट्री में रहने वाले और हमारे जो जितने भी सिटीजन हैं जो दूसरे कंट्री में रह रहे हैं उनके बारे में भी हमको ध्यान रखना है। We should maintain friendly relation with each and every country where Indians are residing, because अगर हम उनके साथ रिलेशन स्पॉइल कर देंगे तो उन लोग हमारे सिटीजन जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको हार्म पहुँचा सकते हैं। To establish economic and commercial relation with other countries for achieving economic development of India, हमको दूसरे कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन अच्छा मेंटेन रखना है ताकि दोनों कंट्री का अल्टीमेटली डेवलपमेंट हो। समझ में आया। नेक्स्ट वी हैव इज अ रिव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हम लोग थोड़ा रिव्यू करेंगे। अ रिव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। We shall take a review of India's foreign policy in 2 stages. A stage from
1990 एंड बिफोर एंड स्टेज फ्रॉम 1990 टिल डेट, मतलब पहले से लेकर इंडिपेंडेंस से लेकर 1990 तक क्या हुआ और 1990 से लेकर उसके बाद अभी तक क्या हुआ, वो चीज दोनों चीज़ों में हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, ठीक है। ओके, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज। Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ji shaped India's foreign policy in the early period. He opposed colonialism through India's foreign policy. He took an internationalist position and gave priority to the global peace and security. Three things influenced in India's foreign policy in this period. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाई। उन्होंने सीधा बोल दिया कि इंडिया में फिर अभी ब्रिटिशर्स के छोड़ने के बाद इंडिया में और भी कोई कॉलोनीज बनेगी नहीं। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ बोली कि हम दूसरे कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहते हैं और पीसफुल तरीके से बनाना चाहते हैं। वी डोंट वांट एनी वॉर विद एनी कंट्री, सिंपल। कुछ ऐसी पॉइंट्स थे जो उन्होंने, तीन ऐसे पॉइंट्स थे जो फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट थे। तो पहला पॉइंट ये है, वी मेड एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पावर। Peace has always been a central feature of India's foreign policy. उन्होंने बोला कि हमको कोई भी कंट्री से कोई भी पर्टिकुलर चीज़ नहीं चाहिए, हमको कोई भी कंट्री को कोई भी पर्टिकुलर चीज़ देना नहीं है, हमको सबके साथ सिर्फ पीसफुली रहना है। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था। पीस वॉज द मेन वर्ड विच वॉज ऑलवेज गिवन प्रेशर व्हेन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज मेड। इंडिया हमेशा पीसफुल मीन से ही हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करके आया है, ठीक है। नेक्स्ट, The threats from China and Pakistan were also taken into account. फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान और चाइना का जो इंडिया के साथ वॉर टाइप सिचुएशन हमेशा चलता रहता है, उसको भी अकाउंट में रखा गया था फॉरेन पॉलिसी में। थर्ड पॉइंट, वन मोर फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट दिस टाइम वाज द इंसिस्टेंस ऑन सेल्फ रिलायंस, ठीक है। इंडिया खुद इंडिपेंडेंट तो हो गई थी, बट इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, वो किसी पे डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती थी। ये सारी चीज़ें इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड की गई थी, ठीक है, जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनी। In the beginning, India decided to improve relations with countries in Asia. Efforts were taken to cooperate with Asian countries in order to achieve development and keep our independence intact. जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनी तो हम लोग दूसरे एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करना चालू कर दिए थे, उनके साथ ट्रेड रिलेशन बढ़ाने की कोशिश करना चालू कर दिए थे, जिससे हमारा इंडिपेंडेंस थोड़ा सा मजबूत हो जाए और ज़्यादा और पावरफुल हो जाए। दिस कंसेप्ट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट लेटर एक्सपांडेड टू इंक्लूड अफ्रीका एज वेल। पहले तो हम लोग सिर्फ एशिया को लेकर ही ट्रेड करने का सोच रहे थे, एशिया को लेकर, एशियन कंट्रीज को लेकर ही ट्रेड करने का सोच रहे थे, पर फिर हम लोग ने उसमें अफ्रीका को भी इंक्लूड कर लिया। But some Asian and African countries participated in military pact, either by America or by Soviet Union. This stopped the process of regional development. But फिर हम लोग को पता है कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर भी चल रहा था, तो कुछ कंट्रीज अफ्रीका की, कुछ कंट्रीज एशिया की, जिन्होंने कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया। किसी ने रशिया के साइड से पार्टिसिपेट किया और किसी ने अमेरिका के साइड से पार्टिसिपेट किया, और फिर उन लोगों ने ये पर्टिकुलर जो पीसफुल डेवलपमेंट चालू था एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज का, जिसको इनिशिएट इंडिया ने किया था, वो चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो उन कंट्रीज को इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। आफ्टर दिस, कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज मिलिट्री पैक्ट्स सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। फिर जिन कंट्रीज ने भी रशिया और अमेरिका, सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों का साथ नहीं दिया था, उन कंट्रीज को मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इंडिया ने मिलकर एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू किया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि पीसफुल और फंडामेंटल, एकदम बोलते ना, पीसफुल और फ्रीडम तरीके से डेवलपमेंट लाना है, फ्रीडम और पीस के हेल्प से डेवलपमेंट लाना है पूरे दुनिया में या वर्ल्ड में, या यू कैन से दैट अपनी अपनी कंट्रीज में। In this period, India had to face conflicts with neighboring countries as well. हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ वॉर भी चल रही थी, हमारी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी ओवर द कश्मीर इशू इन द ईयर 1947-48 एंड 1965. In the third war that happened in 1971, Pakistan broke apart and independent Bangladesh was created. 1971 में फिर जब वॉर चालू था तो वो 1971 के वॉर में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री पाकिस्तान से अलग होकर बन गई। In the decade of 1970s, there came about some stability in India's foreign policy. फिर 1970 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सी स्टेबिलिटी आई।
there came about some stability in India's foreign policy in year 1970. India had risen as a powerful regional power in South Asia. South Asia में फिर इंडिया एक पावरफुल नेशन की तरह डेवलप होना चालू हुई. 1974 में हम लोग ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया और प्रूफ किया कि हम लोग भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं. 1980 में हम लोग ने फिर क्या किया, सम चेंजेस हम लोग ने 1980 में फॉरेन पॉलिसी में लाए. इन ऑर्डर टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, एक साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन बनाया गया, सार्क बनाया गया, ताकि साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज है सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं. इंडिया इनिशिएटेड अ डायलॉग टू इंप्रूव रिलेशंस विद चाइना. इंडिया ने फिर चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा हाथ बढ़ाया. इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड इंटरेक्शन विद अमेरिका फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी. इंडिया ने चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश की. इंडिया ने अमेरिका की हेल्प ली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है. First stage from 1947 to 1990. Now we are going to study first stage from 1947 to 1990. Okay. So next we have is first stage. From 1947 to 1990. Okay. India adopted the policy of non-alignment movement in the context of the Cold War. As a result, priority was given to maintain friendly relations with all nations and to taking the help required for development from different countries. Due to the policy of non-alignment, India could get aid from both the superpowers. इंडिया जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अडॉप्ट की थी, इसका मतलब ये है कि इंडिया ने ना रशिया को सपोर्ट की थी ना अमेरिका को सपोर्ट की थी. और जब बात डेवलपमेंट की आती है तो इंडिया को रशिया का भी सपोर्ट मिलने लगा और अमेरिका का भी सपोर्ट मिलने लगा. ठीक है. जस्ट बिकॉज इंडिया नेवर टुक साइड ऑफ वन कंट्री. ठीक है. उन्होंने कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया. उनको पीसफुल तरीके से उनकी खुद का डेवलपमेंट चाहते थे. ठीक है. और कुछ नहीं. दे डिडंट वांटेड टू पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ वॉर. लेट इट बी अ कोल्ड वॉर. There was a lot of stress on improving and strengthening India's defense system. तभी इंडिया के डिफेंस सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही थी. टेक्नोलॉजिकली वाइज हम लोगों ने इंडिया में रशिया से, फ्रांस से और जर्मनी से हेल्प मांगी और उन्होंने हमारी हेल्प की भी. ठीक है. इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस, जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया, these three countries helped India. In this period, India had to face some challenges. These included the conflicts with Pakistan, creation of Bangladesh and conflict with China. ठीक है. हमारा वॉर चल रहा था पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश क्रिएट हुआ था तभी रिसेंटली, और चाइना के साथ भी हमारा वॉर चल रहा था. इतने सारे प्रॉब्लम्स इंडिया के चल रहे थे वो टाइम पे. ठीक है. समझ में आया. इंडिया प्रूव्ड हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट्स इन 1974. हमने 1974 में हमारा सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था. ओके. सेकेंड स्टेज फ्रॉम 1991 टिल डेट, यानी कि आज तक. is from 1991 till date. Okay, start. India's foreign policy became more comprehensive and dynamic in the second stage. In the post-Cold War period, the priority no longer remained to political and military relations. Several other dimensions like economic, trade, education and technology got included in foreign policy. After 1991, India reduced the government control over the economy and adopted the free market policy. Naturally, there was an increase in the trade with neighboring countries. Our share in the world trade increased. Efforts began to be made to increase the rate of economic growth. अभी पहला पॉइंट क्या बोलता है कि इंडिया 1991 के बाद मिलिट्री और डिफेंस के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देने लगी. कम ध्यान नहीं देने लगी, ज़्यादा ध्यान था उनका, बट और भी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान देना चालू किया, जैसे कि ट्रेड के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें के ऊपर ध्यान देना चालू किया उन्होंने. 1991 में अंडर दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ P.V. Narasimha Rao, the then Prime Minister of India, and Finance Minister of India, the then Finance Minister
डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर इंडिया में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को रिफॉर्म किया था और वो टाइम पे इंडिया जो है वो थोड़ी सी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई थी, भी है। ठीक है, इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया और इंडिया ने जो इकोनॉमिक कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथ में जो था वो थोड़ा सा कम कर दिया, और जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज की नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी ट्रेड रिलेशन बनाना चालू किया उन्होंने। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होने लगी, इंडिया और स्पीड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने लगा, और इंडिया का जो गोल था टूवर्ड्स अचीविंग अ गुड इकोनॉमी वो थोड़ा थोड़ा करके फास्ट अचीव होने लगा था। In the decade after 1990, our relations with South Asian countries like Singapore, Thailand, Vietnam, etc. became stronger. ठीक है, इन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो गया, हम लोग ट्रेड एक्सचेंज भी करने लगे। कौन सी कंट्रीज के साथ? इजराइल, जापान, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, इन सब कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन अच्छा हो गया। ठीक है, India began to participate in organizations at the international and regional levels more than before. जो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, फिर इंडिया उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करने लगा ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल G20, ब्रिक्स, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज का एक ग्रुप है, ये सारी कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करने लगा। हमारा रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छा हो गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा स्टेटस और बढ़ गया। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। You must have studied the meaning of nuclear energy and its uses in subjects like history, geography or chemistry. Having understood the importance of the nuclear power, India undertook the nuclear energy program immediately after independence. इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर एनर्जी को कभी भी कम नहीं समझा है। जैसे इंडिपेंडेंस मिल गया, इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर वर्क करना चालू किया, और न्यूक्लियर एनर्जी से उन लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में तरक्की करना चालू की। ठीक है, द फर्स्ट किधर गए, एक सेकंड। फॉर दिस वी एस्टैब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एक डिपार्टमेंट बना, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, और उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर होमी भाभा, जो हम लोगों ने लास्ट हिस्ट्री लेक्चर में पढ़ा था ना, होमी भाभा रिसर्च सेंटर वाला पार्ट वही है ऑलमोस्ट सेम। इवन दो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज द मेन पर्पस बिहाइंड द प्रोग्राम, इट आल्सो एम्ड एट क्रिएटिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मेनली एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जाता था, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता था, बट बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ों के अलावा भी यू कैन से दैट डिफेंस में भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करा जा रहा था। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, इंडिया कंडक्टेड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। ये चैप्टर में ये तीसरी बार ये स्टेटमेंट आया है कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में कराया था। इंडिया बिल्ट इन न्यूक्लियर वेपन्स एंड कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एज वेल। फिर 1998 में हमने फिर से हमारा टेस्ट कराया। We have also made missiles carrying nuclear weapons and the Air Force and the Navy have been enabled for carrying them. हमने Air Force, Navy और मिलिट्री के थ्रू मिसाइल्स भी बनवाए, और हम लोग ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए और वो सक्सेसफुल रहे। India is now a country which has nuclear weapons. We have accepted the role of a responsible nuclear power. India has been consistently supporting efforts for disarmament because it is India's position that there should be peace and security in the world। ये चैप्टर में हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्टडी की, अगले लेक्चर में हम इंडिया के डिफेंस सिस्टम को स्टडी करेंगे। सो दिस वाज पासिस सर टू यू वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर विद अ ह्यूज लेक्चर, नॉट सो ह्यूज बट आई गेस 40 to 45 मिनट्स का लेक्चर हुआ रहेगा। थैंकिंग यू टू लिसन टू मी सो मच। अगर यहाँ तक देखने के बाद अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके चले जा सकते हो, पसंद आया तो लाइक करके चले जाओ, नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके चले जाओ और बेल आइकन दबा के जाना। अगर शेयर करना है तो कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट विल बी मच हेल्पफुल। सब्सक्राइब कर दो और नहीं समझ में आया तो वापस देख के चले जाना। बाय, दिस वाज वासिस सर वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।